Hello, Namaste and welcome my dear friends on my YouTube channel Way to JRF. How are you all? I hope you all are good and enjoying my videos. So please give the feedback in the comment section. How's video आपको कैसे लग रहे हैं? So keep learning, keep supporting and keep loving. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. तो आज का टॉपिक है PYQs और फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन. ये टॉपिक वाइज सीरीज़ जो आने वाली थी PYQs की, उसका फर्स्ट वीडियो है. सो एंड आई एम आकांक्षा सिंह. आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF. वे टू JRF, लेट्स क्रैक इट. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर ब्लांचिंग फूड? ब्लांचिंग इज़ अ प्रिजर्वेशन प्रोसेस. सो ब्लांचिंग का प्राइमरी रीज़न, मेन रीज़न क्या है फूड को ब्लांचिंग करने का? ऑप्शंस आर क्लीन द फूड, प्रिवेंट्स पेस्ट इन्फेस्टेशन, इनएक्टिवेट एंजाइम्स इन फूड, प्रिवेंट फूड फ्रॉम ड्राइंग. सो ब्लांचिंग इज मेनली अ प्रिजर्वेशन प्रोसेस. सो it is used for preserving the food or food products. So the correct option is inactivate enzyme, because the enzymes which are present in food are the responsible for deterioration or any foul character. So after inactivating this enzyme, food can be preserved. So blanching is used for the inactivation of enzyme in food. ब्लांचिंग मेनली प्रिजर्वेशन प्रोसेस है. तो ब्लांचिंग से जो फूड में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जो फूड को डिटेरियोरेट करते हैं या ख़राब करते हैं, तो वो उन एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ब्लांचिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं. सो द नेक्स्ट इज नॉर्मल BMI फॉर एडल्ट एशियन सजेस्टेड बाय WHO. The options are 18 to 23 kg per meter square, 19 to 24 kg per meter square, 20 to 25 kg per meter square, 21 to 26 kg per meter square. So the normally BMI is stand for body mass index. It is the measure of body fat based on height and weight. So the correct option is 18 to 23 kg per meter square. This is kg per meter square. Kg means weight and divided, this is the symbol of divide, so divided by height in meter square. This is the BMI. जो WHO ने जो BMI सजेस्ट किया है एडल्ट मेल के लिए, एडल्ट्स के लिए नॉर्मली वो है 18 to 23 kg पर मीटर स्क्वायर. इसको ये मेथड है BMI बॉडी फैट को मेज़र करने का ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड वेट. ये kg है, दैट इज़ वेट. ये हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे वेट लिखते हैं. नॉर्मली किसी का वेट है 50 kg एंड उसकी हाइट है लाइक 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर स्क्वायर लिख दो, दैट इज़ हाइट. तो इसको डिवाइड करने से जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ एक्चुअल BMI. इफ़ द BMI इज़ मोर देन 23, अगर BMI 23 से ज़्यादा है दैट इज़ ओबीज. ये ओबीज की कैटेगरी में आएगा, ओबीज की ग्रेड में, लाइक ओवरवेट. अगर इफ़ BMI इज़ लेस देन 18 सो इट इज़ malnourished, मीन्स अंडरवेट में आएगा. So BMI is mainly the measure of body fat based on height and weight, and the normal BMI is 18 to 23 kg per meter square. The next is the SNF of standard milk should be follows. SNF means solid not fat. तो standard milk में SNF कितना होना चाहिए? Options are 8.5, 7.2, 6.5%, 5.2%. The 8.5% is the correct option. The 8.5 is the standard SNF in the standard milk. The next is from which plant source gluten is derived? Gluten, what is gluten? पहले options soya, rice, corn and wheat. Now what is gluten? Gluten is a group of protein like prolamines and glutens. So mainly gluten is derived from the plant source is wheat. Next is HDL is synthesized and secreted from pancreas, liver, kidney and muscles. तो इसको HDL stands for high density lipoprotein. Means lipoprotein means lipid plus protein, means the protein molecules which transport the fat molecules around the body, and this is synthesized and secreted from liver.
HDL is synthesized and secreted from liver and HDL stand for high density lipoprotein. HDL का मीनिंग होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन. इसमें जो प्रोटीन होती है वो फैट को, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फैट मॉलिक्यूल्स को पूरी बॉडी में कैरी करने का काम करते हैं. सो द नेक्स्ट इज RDA for Indian women are based on reference woman who has body weight 50 kg and height 1.40 meter, body weight 55 kg and height 1.61 meter, body weight 48 kg and height 1.56 meter, body weight 52 kg and height 1.37 meter. According to latest 2010 RDA, the correct option is body weight is 55 kg and height is 1.61 meter, and for the male weight is 60 kg and height is 1.71. Okay, the next question is which of the following food are rich in omega-3 fatty acids? तो ये फूड्स हैं lard, butter, fatty fish, olive oil, mustard seeds and walnut. So essential omega-3 fatty acids, these are the essential fatty acids which are good for health, which are essential for good health, maintain the good health. essential omega-3 essential fatty acids जो हैं हेल्थ को, गुड हेल्थ को मेंटेन करते हैं, इसलिए हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए एसेंशियल omega-3 फैटी एसिड्स एसेंशियल होते हैं. और omega-3 फैटी एसिड्स हैं क्या, इनमें कौन कौन से हैं? एक तो है EPA, दूसरा है DHA. EPA मीन्स एकोसा पेंटानोइक एसिड, DHA डोकोसा हेक्सानोइक एसिड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B मीन्स फिश लिवर, फैटी फिश, मस्टर्ड सीड एंड वॉलनट. The next question is which of the following organism cause foodborne intoxication? मीन्स कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फूड पॉइजनिंग और फूड में टॉक्सिक्स कॉज करता है? द ऑप्शंस आर स्टेफिलोकोकस यूरस, ई कोलाई, कोलोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस एंड सैल्मोनेला. द करेक्ट ऑप्शन इज B, Staphylococcus aureus and Clostridium botulinum. These two microorganisms cause foodborne intoxication. The next is which of the following equipments are not used in the kitchen? The equipments are oven, cooking range, telemachine, ब्रांड-मारी, ब्लेंडर, पोटैटो पीलर. मीन्स इनमें से कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो किचन में यूज़ नहीं होते हैं? तो इनका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, टेलीमशीन एंड ब्रांड-मारी. ये दोनों किचन में नहीं यूज़ होते. ब्रांड-मारी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और बड़े मतलब जहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं, जिसमें फूड को गर्म रखने के लिए यूज़ किया जाता है. मीन्स आफ्टर द प्रोसेसिंग, सारा किचन प्रोसेस हो जाने के बाद, फूड प्रिपेयर हो जाने के बाद उसको ब्रांड-मारी में रखते हैं कि फूड गर्म बना रहे. द नेक्स्ट इज give the sequence of stages of sugar cookery in making making brittle like candies, toffee, candy वगैरह बनते हैं. तो in whole during this whole process what are the stages? So वो stages आपको बताने हैं. soft ball, soft crack, hard crack, tooth thread and firm ball. जब शुगर को हीट करते हैं या देर तक उसको पकाते हैं तो सबसे पहले शुगर थिक होना स्टार्ट होगी. जब थिक होना स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्या बनेंगे? टूथ थ्रेड्स. तो यहाँ पे हम ऐसे ही कुछ यूज़ करेंगे कि ये फर्स्ट है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन कहाँ से, दिस इज़ द D. इसके अलावा तो कहीं है नहीं, तो ये ऑप्शन इज एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो दिस इज़ द. अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं. पहले बनेगा टू थ्रेड्स, उसके बाद बनेगा सॉफ्ट बॉल, देन फर्म बॉल, उसके बाद सॉफ्ट क्रैक, देन हार्ड क्रैक. तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज अरेंज इन द करेक्ट सिक्वेंस द सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ एज दे अपीयर इन द एडवांसमेंट ऑफ डिजीज. डायबिटीज़ के सिम्टम्स को करेक्ट सिक्वेंस में अरेंज करना है. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़? सो ऑप्शंस आर डिहाइड्रेशन, ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, कीटोसिस,
हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटिक कोमा। तो इसमें अभी यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो देखना है कि अगर डायबिटीज़ हो रही है तो सबसे मेन रीज़न क्या है इसका। डायबिटीज़, एक तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, तो इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो चेक करो फर्स्ट ऑप्शन किसमें किसमें है, तो सिर्फ इन दोनों में प्रेजेंट है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। उसके बाद देखो लास्ट स्टेज होती है डायबिटिक कोमा मीन्स, ठीक है, तो इसको देखो, अच्छा ये दोनों भी प्रेजेंट है, तो अभी सीक्वेंस से चेक करना है। हाइपरग्लाइसीमिया, देन आता है ग्लाइकोसूरिया, फिर क्या आएगा पॉलीयूरिया मीन्स बार बार यूरिन जाना, जब बार बार यूरिन आएगी तो डिहाइड्रेशन होगा, देन डिहाइड्रेशन होगा, देन कीटोसिस, कीटोसिस के बाद डायबिटिक कोमा। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज मैच द एक्टिव कंपोनेंट्स फ्रॉम, दीज आर द कंपोनेंट्स एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ स्पाइसेस। इनको मैच करना है, तो देखते हैं। एलिल आइसोथियोसाइनेट, एलिन, कारक्यूमिन एंड यूजेनॉल। तो एलिल आइसोथियोसाइनेट प्रेजेंट होता है किसमें, मस्टर्ड में। तो मस्टर्ड से कौन कौन से, ये दो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों कट। इसके बाद आता है एलिन, एलिन प्रेजेंट होता है गार्लिक में मीन्स ये हो गया, ओके। तो अभी दो हो गया, उसके बाद ये तो पहले ही कट हो गया, तो ये होगा नहीं, तो लेफ्ट इज द, दिस इज द करेक्ट आंसर। एलिल आइसोथियोसाइनेट इन मस्टर्ड, एलिन इन गार्लिक, कारक्यूमिन होता है टर्मरिक में, यूजेनॉल होता है क्लोव में, ओके। द नेक्स्ट इज दीज आर द डिजीज और उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। रिकेट्स, फ्लोरोसिस, बेरीबेरी एंड पेलेग्रा। तो अभी देखते हैं। रिकेट्स से होता है काइफोसिस, तो काइफोसिस ये स्टार्ट हो रहे हैं दो। देन फ्लोरोसिस की वजह से होता है मोल्टेड टीथ मीन्स जो टीथ पे वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मोल्टेड टीथ। देन आता है बेरीबेरी से होता है पैरेस्थीसिया। देन पेलेग्रा से डिलीरियम, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज दीज आर द फूड कंपोनेंट एंड दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, मैच करना है। पपाया, ऑरेंज, डेट्स एंड रागी। तो पपाया, येलो एंड रेड फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन ए, so naturally papaya is rich in vitamin A, तो papaya is rich in vitamin A, this is। then orange citrus fruit mainly rich in vitamin C, then dates rich in iron and ragi rich in calcium, this is the correct option, okay। and the next is match the catering unit with the right type of methods of serving। तो आपको बताना है कौन सा सर्विंग यूनिट कहाँ यूज़ होता है। देन कैफेटेरिया, हॉस्पिटल्स, रेलवेज एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। तो कैफेटेरिया में यूज़ होता है स्क्रैम्बल्ड, ये तो सबको पता होगा कि हॉस्पिटल्स में सेंट्रलाइज्ड यूज़ होता है। तो देखो बी सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, हॉस्पिटल में सेंट्रलाइज्ड मीन्स एक जगह पे सारा खाना प्रिपेयर होता है, उसके बाद अलग अलग यूनिट्स में खाना वहाँ से पहुँचाया जाता है। तो बी में फर्स्ट होगा दिस वार। देखो एक ही ये ऑप्शन है जिसमें ये फर्स्ट में, ये बी में फर्स्ट प्रेजेंट है, तो बाकी भी मैच कर लेते हैं। कैफेटेरिया में स्क्रैम्बल्ड होता है। रेलवे में आप पेंट्री से खाना मंगाते हो तो वो प्लेट में मिलते हैं ना, तो प्लेटेड सर्विस, ये भी करेक्ट है। कॉन्फ्रेंस हॉल, कहीं कॉन्फ्रेंस में जाते हैं कुछ, वहाँ पे देखो बफेट होता है वो, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। ये टॉपिक वाइज PYQ सीरीज़ का पहला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो। जल्द भी और सभी वीडियोज़ आने वाले हैं, और आपको वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट। दिस इज़ माई फेसबुक पेज, आप यहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल वे टू JRF। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम।